All right. So, hi everybody. I assume you can hear me. One of you just answer, please. Can you see my screen and can you hear me? Please reply. Yes, sir. All right. So let's start. Now, last week we started with chapter number 1, computer fundamentals, and we are still doing chapter number 1, computer fundamentals. In case you were absent for the last lecture, you didn't go through the video of the last lecture, it's okay. You can still understand almost everything which we are going to do today. So today we'll continue with chapter number 1, where we'll start with a new topic 1.4, Introduction to C. Now, as the topic tells you that in this particular topic, we'll be starting with the C programming language. So you'll give this heading and bracket में parenthesis में you will write refer PN 6,7. अभी आज के बाद बहुत बार तुम ऐसा देखोगे PN. So here onwards PN stands for printed notes. Printed notes क्या है? तो जो मैंने तुमको e-PDF दिया था, ओके, उसको ही मैं printed notes कहूंगा. Earlier during offline lectures, I used to give it in printed form, so we call it printed notes. Till now, I have given you PDF of 2 chapters. Next week, I'll give you the entire PDF, the PDF of the entire syllabus, okay? So 6 and 7 are the page numbers over there, and PN stands for printed notes. So many a times I'll make you write this thing. So इसका मतलब ये होगा कि the detailed theory about this topic is in printed notes, page number 6 and 7. Okay. So now, what are we going to study here? So under this topic, we are going to study the basic features of the C program. So this will be our very first C program. Now, what you see in blue color, I repeat, what you see in blue color is our first C program. Now, after you write a program on your computer, which you will be doing this particular week, you will obviously run that program. You will execute that program. अभी running का क्या मतलब होता है? Running का दूसरा word है executing. तो running and executing का मतलब होता है making the program do its work. I repeat, making the program do its work. For example, you have WhatsApp on your phone. अभी WhatsApp के icon पे जब तुम click करते हो, when you click on the WhatsApp icon, you are basically executing WhatsApp. You are running the WhatsApp, and the WhatsApp does its work. So similarly, when you run this program, when you execute this program, you will see some output on the monitor. You will see some result on the monitor. So this program will produce this output. It will display welcome to the world of C, and below that it will display begin with C programming. Now what you will do is you'll copy everything in your notebook starting from here and till here. I repeat, from here till here. And when you're copying this, you have to copy it as it is. As it is means, for example, almost everything will be in lowercase. So whenever you see something in lowercase, write in lowercase. Lowercase का मतलब small alphabets. Whenever you see in uppercase, in capital, copy it in capitals. Moreover, look at this statement, how I have written. I have written displaying, and then after that, I didn't write this the second message over here. Okay, so I did that purposely. You also do the same thing. You just write till displaying, and on the next one you write the second message. Moreover, over here, see there is a space. So under this W, you leave a space, and this B should come under this E. Now, why all this? I'll explain you very soon. So I'll give you 3 minutes. Copy all this very quickly. Come on, fast. Any doubts? Come on, start copying. I'm still over here, so if you have any doubts, you can ask me.
Sir, you just changed it. Yeah, Susmita, can you tell me what is your full name? Sushmita Mistry. Not you. There is one more Susmita I can see over there. What is your full name? Can you tell me? Actually, sir, Yeah, tell me. I have joined it via mobile. So, Sorry. actually, sir, I have joined it via mobile. So I have said my sister to rejoin it once again via laptop because So, there was some issue. so I can allow only one machine. So I'll which I'll one should leave it from my this device. I'll leave. yeah. All right, few more seconds. All right, so if you haven't copied, then take a screenshot and we'll proceed further. Okay, now, all right, now while I'm explaining you, please stop writing, because if you're writing while I'm explaining you, then you will not understand many things. So stop writing. You have already taken a screenshot. You can copy that later on. Listen. Now, whenever you write a C program, in that C program, there are certain elements which we are going to study over here. Now, because this is the first program, we are going to study certain basic features today. Okay, not everything. So the first basic feature which we are going to study today is called a comment. Now, what is a comment? First of all, anything which is enclosed in slash star and star slash is called a comment. So you start the comment with a slash star and you end it with a star slash. So if you really understood what I'm telling you, tell me, in this program, there are a total of how many comments? 3. 3 comments. All right. This is the first one, this is the second one, and this is the third one. So a comment can take multiple lines also. I wanted you to know that it can take multiple lines. That's why I wrote this comment purposely in 2 lines. Now, what exactly is a comment? So a comment is a statement which in reality is not a part of the main logic of the program. So the comment plays no role in the logic of the program. A comment tells you something about the program. And the most important thing is that the comment is not written in English. I'm sorry. The comment is written in English language, not in C language. Now let's just talk about this last statement which I told you just now. अगर कोई तुमको पूछेगा कि ये स्टेटमेंट कौन से लैंग्वेज में है तो तुम क्या कहोगे? इट इज इन विच लैंग्वेज? टेल मी. दिस इज इन विच लैंग्वेज? Computer language. दिस इज इन सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर कोई पूछेगा दिस इज इन विच लैंग्वेज तो तुम बोलोगे दिस इज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट इफ somebody is asking you this statement is in which language, you will say it is in English language. So comments are not written in C, they are written in English, and comments describe something about the program. So for example, ये comment क्या बोलता है? ये बोलता है कि this is the first C program. ये बोलता है कि we are displaying the first message. ये बोलता है कि we are displaying the second message. वैसे the comments are straight away ignored by the compiler.
आई होप तुमको याद होगा कंपाइलर क्या है. बाय द वे, आज के बाद ऑलवेज रिवाइज द अर्लियर लेक्चर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड सब्सिक्वेंट लेक्चर्स इजीली. सो अ कंपाइलर इज इटसेल्फ अ प्रोग्राम which will convert our program to machine language, और उसके बाद ही तुम्हारा ये प्रोग्राम कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होगा. तो जो कंपाइलर है ना, द कंपाइलर विल स्ट्रेट अवे इग्नोर द कमेंट्स बिकॉज कमेंट्स आर नॉट मेंट फॉर द कंपाइलर, कमेंट्स आर मेंट फॉर द रीडर ऑफ द प्रोग्राम. आई रिपीट, कमेंट्स आर मेंट फॉर द रीडर ऑफ द प्रोग्राम. यानी जो आदमी प्रोग्राम रीड कर रहा है उसके लिए हम कमेंट्स लिखते हैं ताकि उसको प्रोग्राम अच्छे से समझे. Now I'll ask you a question, okay, and I'll ask a question to some particular person, so others should not answer. So my question is to Anup. Anup, so answer this question. Let's say इधर अगर मैंने ऐसा लिखा displaying the second message, displaying the second message, इसके बदले में समझो मैंने लिखा displaying the 10th message, displaying the 10th message. So is my program valid or invalid? Invalid. Anup? Yes, sir. If I write over here displaying the 10th message instead of second message, okay, so my program is valid or invalid? It will be valid because that's just a comment. Yes. So comment, very good. So comment में हम जो चाहे लिख सकते हैं. Okay, over here you can write this is the 10th C program, over here you can write this is not a C program. जो लिखना है लिखो, उसको कंपाइलर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. All right. By the way, जब हम C++ करते हैं C++, तो इन C++ कमेंट्स कैन बी रिटन इन 2 ways. यानी या तो तुम ऐसे कमेंट को लिखो जैसे मैंने दिखाया, या फिर जस्ट पुट 2 स्लैशेस. ओके, जस्ट पुट 2 स्लैशेस और इसके आगे जो भी तुम लिखोगे वो कमेंट होगा. बट दिस स्टाइल ऑफ कमेंटिंग इज अलाउड इन C++, इन जावा, बट नॉट इन रियलिटी इन द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, सो हम अभी से कमेंट है ना ऐसा नॉर्मली नहीं लिखेंगे. विल राइट अ कमेंट in this particular manner only, this manner which is written over here. Okay, let's move ahead. Any doubts with comment? Okay, let's move ahead. अब ये जो स्टेटमेंट है hash include stdio.h, इस स्टेटमेंट को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. इसको याद रखना क्योंकि बाद में भी आने वाला है. I repeat, this statement is called pre processor directive. And this stdio.h, I repeat, stdio.h is the name of a header file. stdio.h is the name of a header file. Okay, ठीक है. अब ये header file क्या है ये तो मैं बताऊंगा, बट उसके पहले ना सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं. फाइल, ठीक है. So let me ask a question to someone. All right. So हर्ष जाजल, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो. हर्ष, यस सर. तुम्हारे सेलफोन में कोई फाइल है क्या? तुमने अपने सेलफोन में कोई फाइल स्टोर किया है? यस सर. कौन सा? कोई भी एक नाम, कुछ भी बोलो, एग्जांपल दो. पर्सनल डॉक्यूमेंट्स फाइल. वेरी गुड. ओके, नाउ एवरीबॉडी लिसन टू मी केयरफुली. ओके, everything in your cell phone, everything in your computer is stored as a file. Every photograph is a file. Every music, every song which you listen to is a file. Every video which you watch is a file. Okay, तो हम जो भी अपने कंप्यूटर में या सेल फोन में स्टोर करते हैं ना, we store it as a file. अब हर एक फाइल का ना एक नाम होता है, हर एक फाइल का एक नाम होता है, and that name contains first name followed by last name या surname, और उन दोनों के बीच में होता है एक डॉट. फॉर एग्जाम्पल, जो भी हम इमेजेस स्टोर करते हैं, फोटोग्राफ स्टोर करते हैं, उसका लास्ट नेम हमेशा होता है .jpeg, और ये लास्ट नेम को आज के बाद हम बोलेंगे एक्सटेंशन. सो दिस थिंग इज द एक्सटेंशन. ओके, एंड फर्स्ट नेम कुछ भी हो सकता है, abc.jpeg. सिमिलरली जो ऑडियो फाइल्स होती हैं, गानों की फाइल्स, ओके, चलो बोलो उनका एक्सटेंशन क्या होता है? एनीबॉडी आंसर? MP3 फाइल. हाँ, MP3. ओके, फिर वीडियो का क्या होता है बोलो? MP4. एंड दूसरा भी बहुत कुछ होता है. सो बेसिकली द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज एवरीथिंग, टेक द वर्ड एवरीथिंग सीरियसली. Everything which is stored in the computer is stored as a file. Everything which is stored in the cell phone is stored as a file. अब उसी तरह से क्या होता है कि जब हम C लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं ना अपने कंप्यूटर पे,
तो अपने कंप्यूटर पे एक फाइल जनरेट होती है जिसको बोलते हैं stdio.h। तो ये फाइल का जो एक्सटेंशन है वो है .h और इस फाइल को कहा जाता है हेडर फाइल। आई रिपीट, इसको कहा जाता है हेडर फाइल। अब ये हेडर फाइल का क्या रोल है, क्यों लिखते हैं, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। फॉर टाइम बीइंग stdio का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, h का मतलब है हेडर। तो तुमको चाहिए तो तुम इधर साइड पे लिख सकते हो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। लिखना है तो लिखो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं, क्यों, वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा। सो बेसिकली दिस एंटायर स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड दिस stdio.h इज अ हेडर फाइल। अब आगे बढ़ते हैं टू void main। तो ये जो मेन तुमको इधर दिखाई दे रहा है ना, मेन दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सी प्रोग्राम। यानी सी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ना वो मेन से स्टार्ट होता है। तो मेन के बाद हम हमेशा पैरेंथेसिस डालेंगे। अच्छा चलो एक बात कर लेते हैं, ये जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ओके। आज के बाद मेरे को बोलो ये जो ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलते हैं बोलो? Parenthesis. इसको क्या बोलते हैं? Curl. इसको क्या बोलते हैं? Square bracket. आज के बाद ये जो है ना, ये इसको हम राउंड ब्रैकेट्स नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पैरेंथेसिस। सो टुडे ऑनवर्ड्स यू शुड टॉक लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, ओके, नॉट लाइक अ लेमैन। पैरेंथेसिस का मतलब राउंड ही होता है। आज के बाद इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्रेसेस। ब्रेसेस आर ऑलवेज कर्ली। और इसको हम बोलेंगे ब्रैकेट्स, ठीक है। तो आज के बाद अगर मैं ब्रैकेट्स बोलूं तो वो स्क्वायर है, ब्रेसेस बोलूं तो कर्ली है, पैरेंथेसिस बोलूं तो राउंड है। ये हमेशा तुमको याद रखना है। सो जस्ट अ मिनट। So after writing main, we put a set of parentheses and then we put a pair of braces. So opening brace here and closing brace here. And जो भी अभी हमको लिखना है ना वो हम ये ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। And the execution starts from here. ये पॉइंट तो दिखता है ना, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। By the way, in your college हो सकता है कि your teacher is not writing void, your teacher is writing int, int, या ऐसा भी हो सकता है your teacher is not writing anything over here। तो ये void क्यों लिखते हैं, int कब लिखते हैं, कब नहीं लिखते हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे कॉलेज में अगर इधर int लिखते हैं तो तुम int लिखो, कुछ नहीं लिखते हैं तो कुछ मत लिखो। ऑल दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन चैप्टर नंबर 6 फंक्शंस। एनीवे लेट्स मूव अहेड। अभी जैसे हम void में एंटर करते हैं तो पहला स्टेटमेंट तो कमेंट है, तो उसको कोई लॉजिकल रोल नहीं है, वो तो रीडर के लिए है। उसके बाद आता है प्रिंटफ स्टेटमेंट, और ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ना, दिस प्रिंट ब्रेसेस के बाद सबसे पहले आता है प्रिंटफ स्टेटमेंट। और जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ना, इट डज द वर्क ऑफ आउटपुट। दैट मींस इट विल शो यू सम रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। नाउ व्हाट रिजल्ट? तो प्रिंटफ का लॉजिक क्या है कि जो भी तुम ये कोट्स के अंदर लिखते हो, बाय द वे आज के बाद इसको हम बोलेंगे डबल कोट्स। आई रिपीट, डबल कोट्स। तो जो भी तुम डबल कोट्स के अंदर लिखोगे ना, इट विल बी डिस्प्लेड एज इट इज। हाँ, तो मुझको बोलो ये प्रिंटफ क्या डिस्प्ले करेगा, बोलो। Welcome to the world of. Very good. Okay, please answer. Okay, if you answer, you will be more awake, more active. And once again, I'm telling you, it's better to give a wrong answer instead of keeping quiet. Okay, so please answer the questions. अच्छा बोलो, ये printf क्या डिस्प्ले करेगा, बोलो। Begin with the C program. वेरी गुड, ओके। बट अभी होता क्या है ना कि जो सेकंड printf है ना, उसमें तुमको दिखाई देगा /n। ये जो /n है ना, इसको बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। आई रिपीट, न्यू लाइन कैरेक्टर। एंड दिस न्यू लाइन कैरेक्टर इज नथिंग बट द एंटर की ऑफ द कीबोर्ड। तो बेसिकली क्या होता है ना कि क्योंकि मैंने इधर /n डाला ना, कर्सर माउस का जो कर्सर विल कम ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो देखो ये इधर तक डिस्प्ले हो गया, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी। देन बिकॉज ऑफ /n कर्सर विल कम ओवर हियर। फिर मैंने देखो यहाँ एक स्पेस दिया है,
तो ये सेम स्पेस देखो इधर भी रिफ्लेक्ट होगा और उसके बाद आएगा बिगिन विद सी प्रोग्रामिंग। ओके, so this is how the program works. Now we'll do all this practically, but any doubts here? No, sir. Okay, No, now sir. okay, very good. Now I assume तुमने इतना कॉपी कर लिया है, all right? तो अभी ये सबको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। Sorry. Now I'm going to teach you how to install the C programming language and how to actually do all these things on your computer. For the next half an hour, if you don't pay attention, then you will have doubts throughout your entire semester. इसलिए ध्यान से सुनना और ये इंस्टॉलेशन सब अभी मैं तुमसे कराऊंगा। ओके, सो प्लीज बी अटेंटिव। ओके, बी वेरी अटेंटिव। चाहिए तो एक नोटबुक लेके बैठो, उसमें छोटी छोटी चीजें लिख सकते हो। ओके, अच्छा, अभी अगर तुमको अपने कंप्यूटर पे सी प्रोग्रामिंग करना है तो तुमको उसका कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जब हम कंपाइलर डाउनलोड करते हैं ना, तो हम हमेशा डाउनलोड करते हैं C++ कंपाइलर। देयर इज नथिंग लाइक C कंपाइलर, यू विल ऑलवेज डाउनलोड अ C++ कंपाइलर। So if you download the C++ compiler, you can do C programming as well as C++ programming. By the way, 80% of C++ is C programming. यानी C किए बिना तुम C++ नहीं कर सकते। Okay? Anyway, अभी अगर तुम्हें C++ करना है तो there are many what should I say, softwares available like Turbo C, then Borland C, Code Blocks, Dave C++, and so on. But Yes. the two most famous ones are Turbo and Code Blocks. Okay, so I will teach you their installation. अगर तुम अपने कॉलेज में कुछ और यूज करते हो तो चलेगा। The logic of the program remains same. Okay, तुम प्रोग्राम टर्बो में करो, कोड ब्लॉक्स में करो, डेव में करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी अगर तुमको टर्बो इंस्टॉल करना है तो तुम गूगल पे जाके टाइप करोगे टर्बो C++ डाउन। ऑलराइट, अब जो भी फर्स्ट लिंक आता है तुम उधर जा सकते हो। सो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट लिंक, सो यू कैन गो ओवर देयर। ऑलराइट, एंड ओवर हियर ना जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूं वो सभी इंस्ट्रक्शंस इधर है, फिर भी तुम इसको रीड कर सकते हो। एंड नाउ विल क्लिक ऑन दिस डाउनलोड टर्बो C++। ऑलराइट, सो आई विल क्लिक ऑन दिस। अच्छा, तो अभी ये मुझको पूछा कहाँ डाउनलोड करना है। सो आई विल डाउनलोड इट इन माय डाउनलोड्स फोल्डर। ओके, एंड I will save it. So I click on save now. मेरे पास ये पहले से फाइल है तो ये मुझे डू यू वांट टू रिप्लेस इट, मैं फ्री बोलूंगा चलो यस। ऑलराइट, सो देखो ये डाउनलोड शुरू हो गया एंड आई थिंक खत्म भी हो गया। ओके, नाउ आई विल क्लिक ऑन ओपन व्हेन डन। ऑलराइट, just wait for a minute. All right, so it's opening now. ठीक है, now just a minute, I'll go to my downloads folder directly and I'll show you. So this is the downloads folder of my computer. So I go to downloads और ये डाउनलोड्स फोल्डर में तुमको दिखाई देगा टर्बो सीट वर्जन 3.2। ओके, अब ये जो है ना ये एक WinZip फाइल है, तो इसको हमको पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इधर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके मैं इधर करूंगा एक्सट्रैक्ट हियर। सो व्हेन आई डू एक्सट्रैक्ट हियर आई विल क्लिक ओवर हियर, आई विल से यस टू ऑल। ठीक है, तो ये देखो ये फाइल बन गया टर्बो C3। ओके, सॉरी ये फोल्डर देखो ये जनरेट हुआ आफ्टर एक्सट्रैक्शन। नाउ आई विल गो इनसाइड दिस फोल्डर एंड दिस इज द सेटअप फाइल टर्बो C++ 3.2। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा। अब जब मैं डबल क्लिक करूंगा द इंस्टॉलेशन विजार्ड स्टार्ट्स एंड ऑल यू नीड टू डू ओवर हियर इज जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 एंड द इंस्टॉलेशन विल बी डन। राइट नाउ आई विल क्लिक ऑन कैंसिल। बाय द वे, जब तुम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो हो सकता है कि ये तुमको पूछे कि डू यू ट्रस्ट दिस फाइल एंड ऑल्सो जस्ट क्लिक ऑन यस। ओके, नाउ राइट नाउ क्लिक ऑन कैंसिल, बट इफ यू क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 द इंस्टॉलेशन विल बी डन
and after the installation is done, 1 minute, after the installation is done, you will see a desktop shortcut over here. Okay, मैंने वो शॉर्टकट निकाल दिया है, बट तुमको ना इधर MS DOS Turbo C++ ऐसा दिखाई देगा. नॉर्मली मैं क्या करता हूँ ना, नॉर्मली अगर तुमको समझो इधर डेस्कटॉप का शॉर्टकट नहीं दिखाई देना, तो तुम क्या करो, इधर सर्च में जाओ, सर्च में जाके इधर टाइप करो टर्बो. ऑलराइट, और तुमको ये दिखाई देगा टर्बो C++ ऐप. एक और काम करो, इधर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके ना तुमको ये ऑप्शन आएगा पिन टू टास्क बार. ओके, अब मैंने ऑलरेडी पिन किया है तो इसलिए बोल रहा है अनपिन. ओके, बट तुमको दिखाई देगा पिन टू टास्क बार, तो तुम वो ना पिन टू टास्क बार सिलेक्ट कर लो. उसके बाद ना तुमको देखो ये आइकन हमेशा इधर दिखाई देगा. आई होप यू कैन सी माई माउस पॉइंटर टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ माई स्क्रीन. ऑलराइट, सो दिस लुक्स बेटर इंस्टेड ऑफ कीपिंग द आइकन ओवर हियर, बट इवन इफ यू कीप द आइकन ओवर हियर इट्स ओके, इट्स अप टू यू. एनीवे, तो इधर तक इंस्टॉलेशन हो गया है. एक और तरीका है चेक करने का कि इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. तुम्हें ना सी ड्राइव में जाओ. सो दिस इज माय सी ड्राइव. सी ड्राइव में ना तुमको एक फोल्डर दिखाई देगा, देखो टर्बो सी. तो अगर ये फोल्डर दिखाई दे रहा है, इंस्टॉलेशन हो चुका है, जैसे मेरे कंप्यूटर पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. ओके, उसमें फिर तुम बिन में जाओ. ओके, एंड बिन में तुमको एक और फोल्डर दिखेगा प्रोजेक्ट. ऑलराइट, अभी ये एम्प्टी है, बट आफ्टर सम टाइम इट विल गेट फिल्ड. सो एनी डाउट्स हियर? एनी डाउट्स हियर? No, sir. ठीक है. सो वंस द इंस्टॉलेशन इज ओवर, बाय द वे आज ही मैं तुमको इंस्टॉलेशन कराऊंगा. वंस द इंस्टॉलेशन इज ओवर, नाउ व्हाट यू डू इज, ये टास्क बार पे देखो नीचे ये टास्क बार पे देखो नीचे मैं आइकन पे भी क्लिक कर रहा हूं. ओके, सो नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द आइकन एंड दिस हैज स्टार्टेड. ओके, ये आइकन पे मैंने क्लिक किया, ये वाला आइकन, ये वाले में. ओके, एंड दिस हैज स्टार्टेड दिस टर्बो C++ का इंटरफेस. अब यहां तुम क्लिक करो इसको, स्टार्ट टर्बो C++. अब जैसे तुम स्टार्ट करोगे ना, तुमको एक ब्लू कलर की स्क्रीन दिखाई देगी, दिस वन. ओके, अब ये जो स्क्रीन तुमको दिखाई देती है ना, इसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर. I repeat, text editor. So a text editor is basically a part of the Turbo C++. It is a small program. Text editor basically helps you to edit text. तो editing का मतलब क्या है? तो editing का मतलब होता है typing, cutting, pasting, saving, वो सब उसको बोलते हैं editing. ठीक है? अच्छा, अभी एक बार ये text editor खुल गया, अब तुम क्या करो, फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ. All right. And now over here, I will type the same program which I have taught you just now. So very quickly, I will type the same program hash include. Someone dictate to me. इसके बाद क्या है? Hash include क्या है? बोलो. क्या है? बोलो. stdio.h. फिर क्या है? बोलो. Anyone? Void main. फिर printf. हाँ, printf में message क्या है? बोलो. बताओ क्या? Quotation marks. हाँ. And welcome to the world of C. ओके, थैंक यू. वेलकम टू सी. ठीक है, फिर नेक्स्ट printf का मैसेज क्या है? बोलो, बताओ. Begin with C program. All right, so I'll put a /n and then begin with C. ठीक है. अच्छा, इसके बाद मैंने प्रोग्राम क्लोज कर दिया. अब मैं क्या करूंगा, इधर है ना तीन और स्टेटमेंट डालूंगा. Now I'll type 3 more statements जो तुम कॉपी नहीं करोगे. Okay, you will not copy them in your notebook. Okay, so why I'm writing these 3 statements, I'll tell you later on. So over here I'll write hash include conio.h. conio का फुल फॉर्म होता है console input output. इधर मैं लिखूंगा clr scr and इधर मैं लिखूंगा get ch. And now I'll save this. अब सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो I'll go to either I can press F2 directly. Okay, so I can press F2. I mean function F2 on the laptop, or I can go to file and I can click on save. Okay. अभी जब तुम सेव में जाओगे ना, तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट पे क्लिक करो. ऐसे ये देखो, मैं अभी ये वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा. By the way, before I click on the project, let me tell you one thing.
अगर तुम ये टर्बो सी प्लस प्लस का पूरा लुक एंड फील देखोगे ना, तो तुमको क्या लगता है इसके बारे में? कुछ तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है इसके लुक के बारे में, इसका पूरा फील के बारे में? कुछ ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा? बोलो। It feels like the BIOS system of Windows. Yes, very good. And you are absolutely correct. So basically the look and feel of Turbo C++ is very old. Actually, Turbo C++ is a very, very old software. It is being used in 1990s or maybe even 1980s. जब मैं स्टूडेंट था, मैं भी टर्बो यूज करता था, तभी भी ये ऐसा ही दिखता था. ओके, there are some reasons because of which now I don't prefer turbo. I prefer code blocks. Why code blocks? वो भी मैं बाद में बताऊंगा. But still I am teaching you turbo C++ क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस अभी भी इसको यूज करते हैं. Anyway, अभी ये मैं प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करूंगा. ठीक है, तो मैंने प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया, एक तरह के इस पे क्लिक किया. ठीक है, अभी ये जो तुमको दिख रहा है ना, ऊपर देखो, ये चीज जो तुमको दिख रही है ना, देखो जब कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, देखो ये पोर्शन, see the green highlighted portion. Okay, this is the name, this is the default name of the file in which your program will get stored. तो अगर तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, मेरे को बोलो ये फाइल का एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन यानी सरनेम, लास्ट नेम क्या है? बोलो. .cpp. CPP का मतलब होता है C++. तो by default your program will be stored as a C++ program, but you shouldn't store it as a C++ program, you store it as C program. और ये चीज याद रखना, क्योंकि CPP करोगे ना तो कुछ मिस्टेक आएगा, फिर तुम उसको पूछोगे. तो इसको तुम कर दो .c. अभी ये डॉट के आगे जो तुमको दिखता है, देखो ये पार्ट, दिस इज द फर्स्ट नेम. एंड अगर थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो ये फर्स्ट नेम पता है क्या है? ये है नो नेम 00. नो नेम 00. तो बाय डिफॉल्ट ना इसका नाम है नो नेम 00. यू कैन चेंज इट टू एनीथिंग एल्स. मैं ना इसका नाम रखूंगा फर्स्ट. तो ये देखो FIRST. ओके, तो अभी हमने जो प्रोग्राम टाइप किया ना, ये वाला, दिस विल गेट स्टोर्ड इन first.c. This first.c will be inside a folder called project, which is inside a folder called bin, which is inside a folder called turbo C3, which is inside C drive. अब मैं देखो इसको ओके करूंगा, तो ये देखो इधर आ गया first.c. अब इसको ना हम चेक भी कर सकते हैं कि सच में ये स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए I'll take you to C drive. ओके, सी ड्राइव में देखो ये टर्बो सी, यहाँ पिन के अंदर प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर देखो ये फर्स्ट, और इधर नीचे तुमको दिख रहा है टाइप में देखो सी फाइल देखो इधर भी लिखा है. इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ ना, तो इट विल ओपन एज अ नोटपैड फाइल. तो ये देखो तुमको वही प्रोग्राम दिखाई देगा जो मैंने सेव किया. Alright, you can do the changes here also, but here you cannot execute, you cannot run the program. Okay, so anyway, तो अपना प्रोग्राम बेसिकली अभी तक सेव हो चुका है. We have saved the program. Okay, now what next one? By the way, ये जो छोटा स्क्रीन है ना ब्लू कलर का, इसको अगर बड़ा करना है तो तुम कीबोर्ड पे प्रेस करोगे Alt Enter. तो अब मैं अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ Alt Enter, तो ये बड़ा हो जाएगा. ओके, so till here what I have done is I have finished the work of editing. एडिटिंग का मतलब टाइपिंग, कटिंग, पेस्टिंग, सेविंग, वो सब, वो है ना, सब हो चुका है. अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई विल कंपाइल द प्रोग्राम. तो आई होप तुमको याद होगा कंपाइलिंग का क्या मतलब है. कंपाइलिंग का मतलब है, नाउ द कंपाइलर विल चेक द प्रोग्राम फॉर एरर्स, एंड इफ देयर आर नो एरर्स, देन इट विल कन्वर्ट इट टू मशीन लैंग्वेज. ओके, सो नाउ आई विल कंपाइल इट. सो ये देखो मैं कंपाइल, अभी कंपाइल के लिए ना मैं इधर क्लिक कर सकता हूं, और आई कैन प्रेस Alt F9 ऑन माय कीबोर्ड. एज ऑफ नाउ आई विल क्लिक ओवर हियर. वेरी, अब जब मैंने क्लिक किया ना, तो ये बोला सक्सेस प्रेस एनी की, सो आई प्रेस द एंटर की. अब समझो मैंने जानबूझ के इधर से ना ये सेमीकोलन निकाल दिया. ये समझो मैंने सेमीकोलन निकाल दिया. ओके, now every time you change the program, you should save the program. Okay, तो ये मैंने सेव किया. ओके, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ. ओके, उसके बाद अब मैं अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा Alt F9. तो देखो अब ये बोल रहा है एरर्स प्रेस एनी की. सो नाउ आई हिट द एंटर की. अब जब मैं एंटर की हिट करूंगा ना, तो देखो ये बोल रहा है स्टेटमेंट मिसिंग. एंड ये देखो ये हाईलाइट कर रहा है.
अभी होता क्या है ना कि टर्बो सी में एंड इवन कोड ब्लॉक्स में क्या होता है कि कोई भी कंपाइलर में क्या होता है, यू विल नॉट, द कंपाइलर विल नॉट शो यू दैट वेयर एग्जैक्टली द एरर इज। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये अपने को बोल रहा है कि एरर ये लाइन में, देखो ये वाला लाइन हाईलाइटेड है, बट एरर एक्चुअली ये वाले लाइन में नहीं है, एरर देखो ये प्रीवियस लाइन में, सेकंड प्रिंटफ में। तो अब मैं उधर क्लिक करूंगा एंड आई विल पुट द सेमीकोलन, I will save it again. Every time you change the program, save the program. तो ये मुझको बोलेगा overwrite existing file, मैं बोलूंगा yes. And now I'll do Alt F9, देखते हैं करेक्ट हुआ कि नहीं. So Alt, ठीक है. So now the compilation is successful. By the way, syntax का मतलब होता है grammar. और अगर तुमने सेमीकोलन समझो हटा दिया या ये parenthesis हटा दिया, तो you are doing syntax error. That means there is an error in the grammar of your language. तो ये सिंटैक्स एरर हमने रेक्टिफाई कर दिया। नाउ आफ्टर कंपाइलेशन इज ओवर, नाउ यू विल रन द प्रोग्राम। तो उसके लिए यू कैन गो टू रन, यू कैन क्लिक ऑन रन ओवर हियर, ओके, और यू कैन प्रेस कंट्रोल F9 ऑन योर मॉनिटर, सॉरी ऑन योर कीबोर्ड। तो अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, तुमको एक ब्लैक कलर का स्क्रीन दिखाई देगा। ये जो ब्लैक स्क्रीन है ना, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट स्क्रीन। I repeat, इनपुट आउटपुट स्क्रीन। इनपुट आउटपुट स्क्रीन का मतलब वो स्क्रीन जहां तुमको आउटपुट दिखाई देता है, या फिर वो स्क्रीन जहां तुम इनपुट एंटर करते हो। फॉर टाइम बिंग इस प्रोग्राम में हमने इनपुट कुछ नहीं दिया है, हमको सिर्फ ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, वेलकम टू सी, बिगिन विद सी। ओके, सो आई होप दिस मच इज अंडरस्टूड टू यू। ये आउटपुट वैसा ही है जो तुमने देखा था, वेलकम टू सी, और उसके बाद देखो W के नीचे स्पेस है। Now, if you want to go back to the text editor, you will hit the enter key again. So I'll hit the enter key. फिर से text editor आ गया. All right. So I hope you understood this much. Any doubts here? Any doubts? ठीक है. Now, any doubts? No, sir, no doubts. Okay. Now I'll explain you कि वो 3 statement क्या है, और फिर मैं तुमको ना एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना। हाँ, अभी ये क्लियर स्क्रीन मैंने क्यों लिखा, तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना निकाल देता हूँ। अच्छा, बाय द वे, अगर मुझे कोई स्टेटमेंट को निकालना है ना, तो उसको फिजिकली डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आई विल जस्ट मेक इट अ कमेंट। सो एज ऑफ नाउ, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैंने 2 स्लैश डाला, बट तुम ऐसा नहीं करना। क्या है ना कि ये 2 स्लैश इधर चल जाएगा क्योंकि C++ कंपाइलर है एक्चुअली, बट शायद तुम्हारे थियोरी एग्जाम में तुम्हारी टीचर इसका मार्क्स काट सकती है। सो डोंट पुट 2 स्लैशेस, ओके। Anyway, after I change the program, always save the program and compile the program. अब मैं ये प्रोग्राम को रन करूंगा, देखो क्या होता है। Now I'll press Alt F9, sorry, Control F9. हाँ, ऑब्जर्वेशन करो, क्या हुआ, क्या अलग दिख रहा है, बोलो। Come on, somebody answer. It's written twice. It's written twice. ठीक है, अब मैं एक और बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एक और बार, ये देखो फिर से Control F9. Now how many times it is written? 3 times. तो क्या तुम मुझे बोल सकते हो क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या एरर हुआ है? एरर नहीं, क्या व्हाट इज अ प्रॉब्लम हो रही है? Specification. क्या Specification was not there. नहीं, पहले वाला समथिंग। वापस आ गया। द आंसर इज एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे आंख के सामने आंसर है, सोचो। फिर वो पहले वाला क्लियर नहीं हो रहा, उसके आगे आउटपुट आ रहा है। I always tell my students, pay attention to the name and derive the meaning from the name itself. तो ये देखो इधर है ना, मैंने क्लियर स्क्रीन को निकाल दिया। तो अगर मैंने क्लियर स्क्रीन को निकाल दिया तो क्या हो रहा है ना, द आउटपुट स्क्रीन is not getting cleared of the previous output. I repeat, the output screen is not getting cleared of the previous output. तो क्या होता है, जैसे मैं देखो अभी मैं फिर से रन करता हूँ, तो ये जो तुमको आउटपुट सबसे लास्ट जो तुमको दिख रहा है ना, वेलकम टू सी, सबसे लास्ट वाला, वो सबसे लेटेस्ट एग्जीक्यूशन का आउटपुट है, और उसके पहले जो भी तुमको दिखता है ना, वो प्रीवियस एग्जीक्यूशंस का आउटपुट है जो क्लियर नहीं हो रहा है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम लिखते हैं क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अच्छा, गेट chq लिखते हैं, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। अब समझो मैं इसको कमेंट बना दूं, हाँ, एज आई टोल्ड यू कि इसको सेव करो, इसको कंपाइल करो, जब भी प्रोग्राम चेंज करते हो उसको सेव करो, उसको कंपाइल करो। अभी देखो मैं इसको रन करूंगा, प्लीज ध्यान देना, इंटरेस्टिंग है।
ये मैं यस बोलूंगा, यस बोलने के बाद तुमको इसका आउटपुट दिखना चाहिए। अच्छा, तुमको इसका आउटपुट दिखा, यस और नो? कम ऑन, आउटपुट दिखा कि नहीं दिखा? नहीं। ठीक है, मैं फिर से देखो रन करता हूँ। आउटपुट दिखा कि नहीं दिखा? नहीं। अच्छा, तुमको ऐसा कुछ एक स्क्रीन का फ्लैश दिखा, ऐसा स्क्रीन फ्लैश हुआ ऐसा दिखा तुमको? अब मैं एक और बार है ना रन करूंगा, तुम देखो ऐसा स्क्रीन का तुमको फ्लैश दिखेगा, फ्लैश देखो फिर से, ध्यान से देखना। डिड यू सी द स्क्रीन फ्लैशिंग? No, not visible. ओके, मे बी जूम पे शायद नहीं दिखता। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, पिछले 2 बार जब भी मैंने प्रोग्राम को रन किया ना, देखो मैं फिर से रन कर रहा हूँ, तो तुमको है ना एक्चुअली आउटपुट दिखाई दिया, ट्रस्ट मी, तुमको है ना आउटपुट दिखाई दिया, बट दैट आउटपुट इज विजिबल ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। आई रिपीट, आउटपुट इज विजिबल ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। तो आउटपुट ऐसा आता है और चला जाता है, ऐसा फ्लैश आएगा और चला जाएगा। ओके, तुम अपने घर पे करोगे ना, तो तुमको ऐसा है ना, तुम्हारे मॉनिटर पे एक फ्लैश दिखाई देगा, फ्लैश। तो एक्चुअली क्या होता है ना, आउटपुट आता है एंड इन 1 मिलीसेकेंड इट डिसअपियर्स। तो आउटपुट को पकड़ के रखने के लिए ना हमको गेट ch लिखना पड़ता है। सो हम क्या करेंगे, ये देखो, हम ना इधर गेट ch लिखेंगे, इसको सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। देखो अब तुमको दिखाई देगा। सो बेसिकली गेट ch डज द वर्क ऑफ होल्डिंग द आउटपुट फॉर यू। अभी तुम कोई भी की हिट करो तो आउटपुट चला जाएगा। सो दिस इज द वे इट वर्क्स। अच्छा, अब मैंने तुमको क्लियर स्क्रीन के बारे में बोला, मैंने तुमको गेट ch के बारे में बोला। अब तुम सोचोगे कि ये conio.h क्यों लिखने का? सो conio.h इज द सपोर्टिंग स्टेटमेंट ऑफ क्लियर स्क्रीन। यानी अगर तुमको क्लियर स्क्रीन लिखने का है तो तुमको conio.h लिखना पड़ेगा उसको सपोर्ट करने के लिए, वरना एरर आए। उसी तरह से printf, printf का सपोर्टिंग स्टेटमेंट है stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h। अभी सपोर्टिंग स्टेटमेंट का एग्जैक्टली क्या मतलब है वो भी मत सोचो, वो चैप्टर नंबर 6 फंक्शंस में देखेंगे। एनी डाउट्स क्लियर? एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. ठीक है, सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? तो सुनो, नाउ व्हाट आई विल डू इज I will kind of stop here for 10-15 minutes. Okay, it's not a break. Okay, it's not a break. अभी ये जो 10-15 मिनट है ना, इसमें तुमको क्या करना है पता है? तुमको ऑनलाइन जाके टर्बो C++ इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद तुमको उस पर वही प्रोग्राम रन करना है जो मैंने अभी किया, एंड ट्राई टू मेक एवरीथिंग वर्क इन दीज 10 मिनट्स। अभी ये जो मैंने, ऑब्वियसली आई कैन नॉट चेक वेदर यू आर एक्चुअली डूइंग दिस और नॉट, बट अभी अगर ये सब नहीं करोगे ना तो बाद में तुमको कुछ चीजें याद नहीं रहेंगी एंड विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू। सो इट्स Sir, can you show that program? प्रोग्राम तुमने नोटबुक में लिखा है ना? आई कैन Okay. शो यू, बट तुमने लिखा है ना नोटबुक में सेम प्रोग्राम। अच्छा, बाय द वे मुझे एक और बात बतानी है, ध्यान से सुनना बिफोर वी टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। देखो पहले ना इधर खाली यही फाइल था, सी फाइल। ओके, अब तुमको इधर एक और फाइल दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है तो बोलो उसका एक्सटेंशन क्या है? बोलो। BAK. हाँ, तो इसको बोलते हैं बैकअप फाइल। एंड दिस बैकअप फाइल गेट्स जनरेटेड आफ्टर कंपाइलेशन। तो जब तुम प्रोग्राम को कंपाइल करते हो ना तो ये बैकअप फाइल जनरेट होता है बेसिकली। ऑलराइट, सो दिस इज वन थिंग आई वांटेड यू टू सी, बट एनीवे नथिंग मच इंपॉर्टेंट, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। Anyway, so abhi somebody wanted to see this program, right? So this is the program. Okay, so now it's 7:38. Okay, I will give you time till 8:05 p.m. I repeat, 8:05 p.m. Okay, I will stop the video and I'll mute myself over here, but I'm still sitting over here in front of you. तो अगर तुमको कोई डाउट है तो तुम मुझे पूछ सकते हो। स्क्रीन शेयरिंग ऑन ही रहेगा, एंड as I told you, पूरा इंस्टॉल करो, पूरा एक प्रोग्राम करो and try to execute it. Okay, so your time starts now. Come on, start. Sir, Yeah, tell me. Sir. Tell me. sir, I have already installed code block. So तो ठीक है, फिर भी टर्बो C++ करके देखो एक बार, okay, होता है sir. तो ठीक है, बनाए सकते। Anyway, you have time.
Okay, so I had paused the recording earlier, which I have resumed now. Okay, so I guess in this much time you must have installed and you must have even worked on Turbo C++. You have done. You must have done your first program. Now, what I'll do is I'll again teach you installation, but now installation of code blocks, which is more important than Turbo C++. And personally, I think you should be using code blocks. Why? I'll give you the reasons also. Let me close this first. Okay, so now, okay, so now I go to my browser and over here I type code blocks dot I hope you can listen to me. Am I audible? Yes, Yes, sir, you are audible. Okay, so I type codeblocks.org. Now over here, go to down. This is the website of CodeBlocks, by the way. So here, go to downloads. Go to download the binary release. And now scroll down. So over here, you will see options that do you want to download for Windows or Linux or Mac OS. So according to your operating system, you follow the particular link. So if you have Windows, you can click over here on Windows. And if you go to Windows, over here, you should download the 4th file. That means this one. Okay. तो चाहिए तो कहीं नोटबुक में लिख के रखो कि तुमको 4th फाइल डाउनलोड करनी है जिसका नाम है कोड ब्लॉक्स 20.03 मिंग W सेटअप. तो मिंग का मतलब होता है मिनिमलिस्टिक GNU. ओके, मिनिमलिस्टिक GNU. ओके, so basically now you will click on either this or this. Okay, so for example समझो मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरा डाउनलोड थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा. All right, and see now if I click on save over here, then the download will start. Now this is a very big file, so I'll not download it right now, but I'll just show you. देखो मैंने save पे click किया. Okay, so now the download had started. I think this file is of 145 MB. तो इसको अभी मैं डाउनलोड नहीं करता हूँ, इसको मैं पॉज कर देता हूँ. All right, ये देखो 145 MB का फाइल है. I hope you can see over here. Okay, so now I have paused this. Now, if you have downloaded, if you have done the entire downloading, then what you do is you go in the folder. That is the downloads folder या जहाँ भी तुमने इसको सेव किया है. तो मैं बोलूँगा show in folder. तो तुमको अपने फोल्डर में ये एप्लीकेशन इस तरह से दिखाई देगा. ऑल राइट, अब मैंने इसको पहले ही डाउनलोड कर दिया है. तो ऑल राइट, जस्ट चेक कोड. ओके, so I cannot locate it where I've downloaded, I've saved it, but it's already there. Anyway, so after you have finished the downloading, you will see it over here. All you need to do is just double click on this. Okay, शायद यही मेरा download file है. Let me just see. Yeah, I think this is the same file which I have downloaded earlier. Let me just check. Yeah, so now it will ask you, do you want to allow this app from an unknown publisher? Okay, so obviously click on yes. After you click on yes, okay, the installation wizard will be seen. Okay, and all you need to do is just click on next, and the download will be, the installation will get over. Code blocks will be installed on your computer. Once again, after the installation is over, you will see desktop icon over here, shortcut icon over here. As I told you, I prefer deleting that icon, and then what you can do is you can just go over here, code blocks. All right, you can right click over here and you can pin it to taskbar. Okay, तो जैसे मैंने इसको taskbar पे pin किया है यहाँ, ये देखो. All right, you can pin it over here. See, I have pinned it over here, but it's your choice. If you want, you can keep the desktop icon over here also. Anyway, अब इसके आइकन पे हम क्लिक करेंगे. सो देखो इसमें मैंने क्लिक किया. So code blocks normally takes a little more time to start because it is heavier than Turbo C++. But
but still I prefer using code blocks. All right, so this is the starting screen of code blocks. As you can see, it is much more modern in terms of look and feel. अब एक बार ये स्क्रीन तुमने देख लिया ना, तो you go to file, then click on new, and new में ना इधर click on file again, इधर फिर से फाइल पे क्लिक करो, ठीक है। अब फाइल पे क्लिक करने के बाद तुम इसको सिलेक्ट करो, C++ सोर्स, डोंट सिलेक्ट हेडर। आई होप तुमको याद होगा हेडर फाइल क्या होता है, तो इसको सिलेक्ट नहीं करना, सोर्स को सिलेक्ट करना एंड क्लिक ऑन गो, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब जब तुम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यू विल सी टू ऑप्शन, C++ एंड C, तो ऑब्वियसली विल गो अहेड विद C। तो अभी इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .c, सॉरी। So now click on next. Now over here you are supposed to give the full path and the name of the file. That means तुमको फाइल कहाँ स्टोर करना है, किस नाम से। तो आई होप तुमको इधर ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, so click on these 3 dots. Okay. Now when you click on these 3 dots, कोई तो एक फोल्डर खुलेगा। For example मेरा जो पीसी है ना, इसमें ये C ड्राइव है। C ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बना के रखा है जिसका नाम है C programs. ओके, ये देखो C programs। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सब कुछ स्टोर करूंगा। यू कैन स्टोर इट एनीवेयर एल्स आल्सो, सो आई गो इनसाइड द C programs, ऑलराइट। एंड नाउ आई विल गिव द नेम ऑफ द फाइल ओवर हियर, सो आई गिव द नेम, लेट्स से फर्स्ट, एंड यू डोंट नीड टू राइट .c ओवर हियर, जस्ट क्लिक ऑन सेव, क्योंकि इधर ऑलरेडी लिखा है देखो C फाइल्स, तो खाली सेव पे क्लिक कर दो, एंड .c अगर लिखा तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ आई क्लिक ऑन सेव, then I click on finish। अब जैसे मैंने finish पे क्लिक किया, देखो ये इधर टैब आ गए, टैब पहले यहाँ नहीं था, तो it means you have created the program first.c। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। So you go to this PC, go to C drive, go to C programs, go to ये देखो ये first। और अभी अगर मैं इसको अभी ये देखो इधर 0 बाइट्स दिख रहा है, तो देखो ये देखो 0 बाइट्स, इसका मतलब अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ओके, इट इज एम्प्टी। अगर मैं डबल क्लिक करके दिखाऊं तो कोई एम्प्टी दिखेगा, देखो। एनीवे, सो नाउ आई विल मिनिमाइज दिस, आई विल गो टू कोड ब्लॉक्स अगेन, ओके, ऑलराइट। नाउ ओवर हियर अगेन आई विल डू द सेम टाइपिंग वेरी फास्ट, वेरी क्विकली। सो हैश इंक्लूड, अच्छा, बाय द वे लेट मी आल्सो टेल यू व्हाई आई प्रेफर यूजिंग कोड ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ टर्बो सी। तो इसके बहुत सारे रीजंस है, कुछ छोटे छोटे रीजंस, कुछ बड़े रीजन। एक रीजन ये है कि क्या होता है ना, जब तुम टर्बो सी यूज करते हो ना, तो तुमको जो प्रोग्राम है ना वो वहीं स्टोर करना पड़ता है, वहीं यानी कहाँ, तो इन C ड्राइव, इन टर्बो सी, इन बिन, इन प्रोजेक्ट्स, ऐसे कहीं और स्टोर करोगे ना तो तुमको छोटा छोटा प्रॉब्लम्स आ सकता है, जिसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट इफ यू आर यूजिंग कोड ब्लॉक्स, यू कैन स्टोर द प्रोग्राम एनीवेयर इन एनी फोल्डर विच यू वांट। सो दिस इज द फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी विच यू गेट। Another feature, good feature with code blocks is that it offers you code completion. I repeat, code completion. Code का मतलब program। तो जैसे कि देखो मैंने इधर हैश टाइप किया, तो हैश से जो भी चीज स्टार्ट होता है ना सब आ गया। तो इधर अभी चाहिए तो मैं ऐसा इसको क्लिक करूंगा तो ये हैश इंक्लूड आ जाएगा ऐसे, ऑलराइट। So when you do advanced programming, I mean when you are deep into programming, this thing helps you a lot. Another feature is that it gives you automatic indentation। अभी indentation का क्या मतलब है बताता हूँ, okay? But indentation के पहले one more feature which I like over here is, and that feature is of pinch and zoom. So now on my mouse trackpad, I will just zoom over here, okay? So see, तो ये देखो ये zoom हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो ये सब है ना तुमको टर्बो C++ में नहीं मिलता है, ओके? अच्छा, अब मैंने लिखा हैश इंक्लूड, अब मैंने लिखा stdio .h, ठीक है, उसके बाद void main। अच्छा, अभी तुमको पता चलेगा इंडेंटेशन का क्या मतलब है, कोड कंप्लीशन का क्या मतलब है। अब नाउ आई विल प्रेस द ओपनिंग ब्रेस ऑन माय कीबोर्ड, ठीक है, तो मैंने ओपनिंग ब्रेस डाला। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो इधर 2 चीजें हुई है, कोड कंप्लीशन एंड इंडेंटेशन। मैंने सिर्फ ओपनिंग ब्रेस ही डाला था, बट देखो ध्यान से इसने अपने आप क्लोजिंग ब्रेस भी डाल दिया, क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है, तो ये कोड कंप्लीशन हुआ है। अब इधर ना इंडेंटेशन भी हुआ है, इंडेंटेशन, ओके, INDEN, इंडेंटेशन।
अब इंडेंटेशन का क्या मतलब है, तो देखो मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखना। हाँ, मैंने ना देखो ये ओपनिंग ब्रेस डाला, अब देखो क्या होगा, ध्यान से। ओपनिंग ब्रेस डाला, क्लोजिंग ब्रेस अपने आप आ गया, एंड कर्सर देखो कहाँ ब्लिंक कर रहा है। If you see carefully, the cursor is blinking a little on the right hand side of the previous line. यानी previous line देखो यहाँ है, यहाँ, but cursor यहाँ blink कर रहा है। So ये जो होता है ना pushing on the right side, इसको बोलते हैं indentation. I repeat, pushing on the right hand side, इसको बोलते हैं indentation, and this is done to make the program look better. तो automatically इधर indentation हो चुका है। indentation का spelling ये देखो, indentation. ऑलराइट, इंडेंटेशन का मतलब होता है पुशिंग ऑन द राइट साइड। इसके बारे में और भी हम बात करेंगे बाद में। एनीवे, तो नाउ ओवर हियर आई कैन टाइप प्रिंट एफ, ओके, एंड इसमें डबल कोट्स में मैं लिखूंगा, ओके, हेलो कोड ब्लॉक्स, ऑलराइट, एंड दैट्स इट। ओके, अब मैं एक ही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। अब इधर एक और फायदा ये है कि मुझे है ना वो क्लियर स्क्रीन, conio.h, get.ch वो सब लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, नाउ आई विल सेव द प्रोग्राम। मैंने टाइप किया तो मैं इसको सेव कर लूंगा, या ये ऑटो सेव हुआ है शायद, ओके, तो इसीलिए तुमको ये डिसेबल दिख रहा है। ऑलराइट, सो यू कैन इधर क्लिक ओवर हियर, यहाँ जाके क्लिक करो, या फिर कीबोर्ड पे कंट्रोल एस करो तो ये सेव हो जाएगा। राइट नाउ इट इज ऑटोमेटिकली सेव। अभी इसके बाद हम वही करेंगे, कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। ओके, तो कंपाइलिंग के लिए क्या करूंगा, मैं बिल्ड पे जाऊंगा, एंड या तो मैं बिल्ड पे क्लिक करूंगा या फिर ये कंपाइल करंट फाइल पे क्लिक करूंगा। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में कुछ डिफरेंस है बट अपने लिए सेम है। सो आई विल क्लिक ऑन दिस कंपाइल करंट फाइल। अब जब मैं कंपाइल करूंगा ना, तुमको नीचे ना एक एरर दिखेगा, नीचे यानी यहाँ यहाँ। ओके, सो एक मिनट, इसको थोड़ा मैं बड़ा, हाँ, यहाँ ना तुमको एक एरर दिखाई देगा, देखते हैं कौन सा। सो आई विल कंपाइल द करंट, तो देखो इधर, ओके, यू डिड नॉट सी एनी एरर, आई विल टेल यू व्हाट एरर यू मे सी। ओके, अच्छा, अभी देखो यहाँ ना अगर तुम पढ़ सकते हो तो इधर लिखा है जीरो एरर, जीरो एरर, तो इसका मतलब तुम्हारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। ओके, बट कोई कोई वर्जन्स में क्या होगा ना, कभी कभी क्या होगा, अगर तुम void main लिखोगे ना तो इट विल शो यू द एरर फॉर void। तो अगर तुमको यहाँ एरर दिख रहा है ना, तो तुम क्या करो, ये void को खाली निकाल, सिर्फ मेन लिखो। फिर भी अगर एरर आता है तो तुम इधर लिखो int main, ओके, इधर लिखो int main, एंड इधर लिख दो रिटर्न 0, ऐसा। अब ये int क्या है, ये रिटर्न 0 क्या है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैंने बोला, ये सब तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा इन चैप्टर नंबर 6 फंक्शंस। ओके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये लॉजिक, ये लॉजिक। ओके, ये इंट मेन लिखो, void मेन लिखो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखना, अगर void से एरर आता है तो सिर्फ मेन रखो, उससे भी एरर आता है तो इंट मेन रखो, और उसके बाद भी एरर आता है तो इधर लिखो रिटर्न 0। मोस्ट प्रोबेबली रिटर्न 0 लिखने की कुछ जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी बता रहा हूँ, लिनक्स में हो सकता है कभी कभी ऐसा हो। तो ये जो मैंने अभी तुमसे बोला ना, इंट का, void का, रिटर्न 0 का, दिस हैज नथिंग टू डू विद द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। ओके, इन सम सॉफ्टवेयर इट इज रिक्वायर्ड, रीजन बाद में बताऊंगा। एनीवे, अब मैंने इसको void main रखा, मैंने इसको फिर से सेव किया, एंड मैं इसको फिर से बिल्ड करूंगा। ओके, तो इट शोज 0 एरर्स, जैसे कि तुम देख सकते हो 0 एरर्स। नाउ आई वांट टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, तो मैं फिर से बिल्ड पे जाऊंगा एंड मैं रन पे क्लिक करूंगा। बाय द वे, मैं ऐसा भी कर सकता था कि आफ्टर टाइपिंग एंड सेविंग द प्रोग्राम मैं डायरेक्टली इधर क्लिक करता, इधर बिल्ड एंड रन। तो ये क्या करता, पहले बिल्ड करता, यानी पहले कंपाइल करता, फिर उसको रन करता। ओके, एनीवे, नाउ आई फिल क्लिक ऑन रन। सो मैंने क्लिक ऑन रन, तुमको देखो ये इनपुट आउटपुट स्क्रीन दिखाई दे रहा है। इसमें ये जो स्टेटमेंट तुमको दिख रहा है, प्रोसेस, रिटर्न, फिर प्रेस एनी की, ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, ये तुमको हमेशा दिखाई देगा। और अपना आउटपुट देखो, तुमको यहाँ दिखाई दे रहा है, हेलो कोड ब्लॉक्स, दिस इज आवर आउटपुट। नाउ द कर्सर इज ब्लिंकिंग, आई हिट द एंटर की, तो ये इनपुट आउटपुट स्क्रीन चला जाएगा। ओके, सो आई थिंक इट वाज फेयरली सिंपल। अच्छा, अभी कोड ब्लॉक्स यूज करने का एक और रीजन क्या है, एक और रीजन ये है कि यहाँ तुमको ना वो 3 स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ेगा। बोलो कौन सा 3 स्टेटमेंट, कौन सा 3? Clear screen and that get. करेक्ट, Get clear, CH. get ch, conio सब भी लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ आई विल आस्क यू वन मोर स्टेटमेंट, और उससे मुझे पता चलेगा कि तुम में कॉमन सेंस है क्या। बाय द वे, तुमको अगर प्रोग्रामर बनना है ना, तो तुमको कॉमन सेंस होना चाहिए। यू कैन नॉट बिकम अ प्रोग्रामर अनलेस एंड अनटिल यू हैव कॉमन सेंस।
मुझको एक बात बोलो, ध्यान से सुनना, बी अटेंटिव। मुझको एक बात बोलो, समझो तुम कॉलेज में टर्बो C++ यूज करते हो, कोड ब्लॉक्स यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, हाँ। अब तुम्हारा जो थियोरी एग्जाम होगा, थियोरी एग्जाम, ओके, वो तुमको पेपर पे लिखना पड़ेगा। थियोरी एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, बाय द वे अभी तो ऑफलाइन होगा तुम्हारा एग्जाम, आई होप यू नो दिस। तो तुम्हारा जो थियोरी एग्जाम होगा वहां तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑन पेपर तुमको पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब जब तुम प्रोग्राम को ऑन पेपर लिख रहे हो तो तुमको क्लियर स्क्रीन गेट ch conio.h लिखने का जरूरत है कि नहीं है, बताओ, ऑन द पेपर। As per given instruction, if teacher asks you, समझो इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो तुमको जरूरत है कि नहीं? Yes, sir. सम अदर आंसर नहीं है। नहीं? हाँ, नहीं अच्छा, जो जिसने बोला नहीं है, क्यों नहीं है बताओ? sir, as we are typing it on good software. नहीं, देखो तुम्हारा देखो, फर्स्ट द आंसर इज कि अगर तुम ध्यान से सुना, अगर तुम प्रोग्राम लिख रहे हो ऑन अ पीस ऑफ पेपर, then you don't need to write those three statements. Why? Because those three statements do not play any role in the logic of the program. They are only written for viewing the output properly. यानी आउटपुट ठीक से दिखाई देना, इसलिए तुम उसको लिखते हो, अदरवाइज का कोई रोल नहीं है। तो थियोरी एग्जाम में उसको कभी नहीं लिखना, लिखोगे तो चलेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर तुमने लिखा और मिस्टेक किया तो मार्क्स कट होगा। फॉर एग्जाम्पल समझो तुमने ऐसा लिखा, समझो तुमने लिखा CLSCR ऐसा लिखा, ओके। तो अब इधर देखो, तुमने ये R डालना भूल गए। अब मैं ना थियोरी एग्जाम का बात कर रहा हूँ। थियोरी एग्जाम में तो तुम चेक नहीं कर पाओगे कि तुम्हारा सिंटैक्स करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ओके। तो तुम पेपर ऐसे ही सबमिट कर दोगे, एक सेमीकोलन आया, सब पेपर सबमिट कर दोगे। अभी जब तुम्हारी एग्जामिनर चेक करेगी, ओके, उसको ये एरर दिखाई देगा एंड यू विल लूज मार्क्स। तो ये 3 स्टेटमेंट फालतू में एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। दोस 3 स्टेटमेंट्स आर टू बी रिटन ओनली इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिकल्स इन टर्बो C++। कोड ब्लॉक्स में भी उसका जरूरत नहीं है। एनी डाउट्स क्लियर? No, sir. ठीक है, अभी आज लेक्चर खत्म होने के बाद इमीडिएटली बाद, ओके, तुम ये कोड ब्लॉक्स भी इंस्टॉल करोगे और इस पे भी एक प्रोग्राम करोगे, और ये तुमको आज ही करना है। बाय द वे ये प्रोग्राम देखो अभी यहाँ स्टोर भी हो चुका है, इफ यू वांट यू कैन सी दिस। ये विंडोज में हम गए एंड ये देखो सी प्रोग्राम्स, एंड ये देखो ये है सी फाइल। अब क्या होता है, जब हम कोड ब्लॉक्स में प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो 3 फाइल क्रिएट होती है। आई होप तुमको याद होगा कि टर्बो C++ में 2 फाइल क्रिएट होती थी, एक तो नॉर्मल सी फाइल, एक बैकअप फाइल। इधर 3 फाइल क्रिएट होगी, ये नॉर्मल सी फाइल, एक एप्लीकेशन फाइल, ओके, एक एप्लीकेशन फाइल क्रिएट होगी, ऑलराइट। एंड उसके बाद ये ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी जिसमें मशीन लैंग्वेज होता है, ओके। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट फाइल विच इज ऑल्सो क्रिएटेड। इसको मैं अगर ओपन करूं विथ, समझो इसको अगर तुम बाद में ट्राई एक बार करके देखते हैं, नोटपैड में समझो ओपन करूं, सो राइट नाउ आई थिंक इट इज नॉट ओपनिंग, बट एनीवे इसको अगर तुम एक मिनट देखते हैं, हाँ ये रहा, देखो। तो ये ना ये वाला फाइल, ये जो फाइल है ना जो ओपन हुआ है, वो ये वाला फाइल है, ओ फाइल। तो ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट फाइल। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट फाइल है ना, इसके अंदर मशीन लैंग्वेज होता है। ये जो तुमको ऐसा सिंबल्स दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं वाइल्ड कैरेक्टर्स, ये एक्चुअली मशीन लैंग्वेज, ओके। तो बेसिकली इधर क्या हुआ, तुमने इसको कंपाइल किया तो बेसिकली इसके अंदर सोर्स कोड है, सोर्स कोड का मतलब सी प्रोग्राम, और उसको कंपाइलर ने कन्वर्ट किया टू मशीन कोड, ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, और वो जो मशीन कोड है वो इसके अंदर है, ऑलराइट। और ये जो एप्लीकेशन फाइल है ना, इसको नॉर्मली जब हम डबल क्लिक करते हैं ना तो आउटपुट दिखाई देता है, अभी भी दिखाई देगा, बट ये अभी क्यों नहीं दिख रहा है आई एम नॉट वेरी श्योर, बट नॉर्मली इसको डबल क्लिक करेंगे ना एप्लीकेशन को तो आउटपुट दिखाई देगा ऐसा, ओके। हाँ, मुझे एक चीज याद आई, अगर तुम्हारे प्रोग्राम में कोई इनपुट है, ओके, तो तभी तुमको ये दिखाई देगा। अभी अपने प्रोग्राम में कोई इनपुट नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है।
Anyway, so these two things are not very important, this one and this one. All right, this file and this are not very important. तुम इसको delete भी कर लो for time being तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Anyway, any doubts here? No, sir. ठीक है. Now let's move on to a few difficult things. अब तुम्हारे नोटबुक में तुमने प्रोग्राम को कॉपी किया है, अब उसके नीचे ना तुम ये हेडिंग दो, stages और softwares involved in program development. Come on, ये हेडिंग दो. Okay, so now whatever I'm going to explain you, it is difficult. ये तुम्हारे oral exam में पूछ सकते हैं. It is important for concepts also, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है. अब क्या होता है ना, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, तो in that programming several stages are involved, and in every stage there are certain softwares, there are certain programs which you will need, and these softwares will work on your program. Okay. तो होता क्या है ना, ध्यान से सुनना, जब हम टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल करते हैं या जब हम कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉलेशन करते वक्त सिर्फ कंपाइलर इंस्टॉल नहीं होता है, नहीं, बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल होते हैं, एंड दीज सॉफ्टवेयर्स कलेक्टिवली वर्क ऑन योर प्रोग्राम. सो अंडर दिस हेडिंग विल स्टडी दो सॉफ्टवेयर्स व्हिच कलेक्टिवली वर्क ऑन योर प्रोग्राम. तो जब तुम प्रोग्रामिंग करते हो तो सबसे जो पहला स्टेज होता है उसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटिंग, और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर. अब तुम बोलोगे टेक्स्ट एडिटर यानी क्या है, तो मैं तुमको सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट एडिटर दूंगा. नोटपैड इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट एडिटर. अगर तुमको नोटपैड नहीं पता, ओके, लेट्स से यू डोंट हैव अ कंप्यूटर, तो शायद तुमको नोटपैड नहीं पता होगा, तो तुम्हारे पास सेलफोन तो होगा. सेलफोन में एक ऐप होता है एवरनोट, या फिर तुम्हारे सेलफोन में और कोई ऐप होगा जिसका नाम होगा नोट. तो वो जो ऐप होता है उसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर. अब टेक्स्ट एडिटर क्या काम करता है, सिंपल, टेक्स्ट एडिटर विल हेल्प यू टू एडिट टेक्स्ट. सो यूजिंग द टेक्स्ट एडिटर यू कैन टाइप, कट, paste, copy, all those things you can do, and eventually you will save the text. Okay, तो जब हमने टर्बो सी प्लस प्लस स्टार्ट किया तो तुमको एक ब्लू कलर का स्क्रीन दिखाई दिया, so that blue screen was the text editor. Okay, so if you want to do a program, the first software which you need is a text editor. Okay, अब एक बार तुम्हारा सेविंग, कटिंग, टाइपिंग, पेस्टिंग, सेविंग हो गया, तो अभी सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे कंपाइलिंग. इस स्टेज को बोलेंगे हम कंपाइलिंग. अब कंपाइलिंग करते वक्त, अच्छा, कंपाइलिंग किस स्टेज को बोलते हैं, तो जब हम टर्बो सी प्लस प्लस कर रहे थे तो देखो मैंने तुमको बोला तुम ऑल्ट F9 दबाओ, तो जब तुम ऑल्ट F9 दबाओगे टर्बो सी प्लस प्लस में तो कंपाइलिंग स्टार्ट होगा. या फिर कोड ब्लॉक्स में एक ऑप्शन था कंपाइल द करंट फाइल, तो कंपाइलिंग स्टार्ट होगा. अब जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना. हाँ, जब हम प्रोग्राम की कंपाइलिंग करते हैं तो टू सॉफ्टवेयर्स वर्क ऑन योर प्रोग्राम, जिसमें से पहले का नाम है प्री प्रोसेसर, दूसरे का नाम है कंपाइलर. ओके, अब कंपाइलर क्या है ना, ये तुमको पहले से पता है. अब हम प्री प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे. अब जो मैं बोलने वाला हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. ओके, बी अटेंटिव. I always tell my students pay attention to the name and derive the meaning from the name itself. तो प्री का मतलब होता है बिफोर. तो प्री प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है which comes into action before the compiler. I repeat, प्री प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है which comes into action before the compiler, और इसीलिए इसका नाम है प्री प्रोसेसर. ओके, अब प्री प्रोसेसर क्या करता है, तो प्री प्रोसेसर डज द वर्क ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग. खत्म, बात खत्म हो गई. प्री प्रोसेसर डज द वर्क ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग. अब तुम बोलोगे क्या सब्स्टिट्यूटिंग, तो ये समझाने के लिए मैं तुमको ना टर्बो सी प्लस प्लस का कुछ दिखाऊंगा. देखो, अगर तुमने टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल किया है ना, तो तुम्हारे कंप्यूटर में एक ऐसा टर्बो C3 एक ऐसा फोल्डर होगा, बराबर. इसके अंदर अगर तुम जाओगे ना तो तुमको दिखेगा ये इंक्लूड. याद करो तो एक स्टेटमेंट भी था, #include stdio.h. ओके, दोनों का रिलेशनशिप है, इसका और ये फोल्डर का. अब ये फोल्डर के अंदर जाओगे ना तो तुमको ये दिखाई देगा. नाउ कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि ये सब क्या है? कैन यू आंसर इन 2 वर्ड्स कि ये सब तुमको क्या दिखाई दे रहा है? बोल सकते हो?
It's okay if you're wrong. header file. Very good. All these are header files जिसका extension है .h. ये देखो .h. तो इसमें मैं नीचे जाऊंगा ना, ये सब alphabetically sorted है, तो ये देखो तुमको दिखाई देगा stdio.h. अब मैं ना stdio.h का कंटेंट्स तुमको दिखाऊंगा, ये देखो. अब इसका जो कंटेंट्स है ना तुमको समझ में नहीं आएगा, खाली देख लो, खाली ऐसे ही देख लो, ये देखो ये सब stdio.h का कंटेंट्स. ठीक है. अब होता क्या है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ, बी वेरी अटेंटिव. दीज आर द कंटेंट्स ऑफ stdio.h. अब होता क्या है कि जब हमने ये वाला प्रोग्राम लिखा ना, ये वाला, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. ठीक है. तो जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं ना, ये तो प्री प्रोसेसर एक्शन में आता है एंड प्री प्रोसेसर डज द वर्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब तुम बोलोगे क्या सब्स्टिट्यूशन? तो प्री प्रोसेसर पता है क्या करेगा? इट विल सब्स्टिट्यूट दिस एंटायर स्टेटमेंट बाय द कंटेंट्स ऑफ stdio.h. Just take a few seconds to understand what I told you just now. I repeat, the preprocessor will substitute this statement, this one, by the contents of stdio.h. तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इधर तुमने जो भी देखा, इधर क्या फाइल, ये वाला, ओके, इधर तुमने जो भी देखा, ये कंटेंट्स, ये सब कंटेंट्स ना तुम्हारे प्रोग्राम में इधर आ जाएगा, although तुमको ये दिखाई नहीं देगा, but it will get substituted over here. So this is the work done by preprocessor, and ये पूरे statement को बोलते हैं preprocessor directive. Any doubts in this? Any doubts? अच्छा, अब तुम बोलोगे कि preprocessor ऐसा क्यों करता है, तो ये सब हम सीखेंगे इन चैप्टर नंबर, बोलो क्या? 6. हाँ, इन चैप्टर नंबर 6 फंक्शंस. तुम सोचोगे कि अरे ये सब कुछ चैप्टर 6 में ही है क्या? तो ऐसा नहीं है, बट ये कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसा है जो चैप्टर 6 से रिलेटेड है. एनीवे, सो क्यों प्री प्रोसेसर सब्स्टिट्यूट करता है वो मत सोचो, वो बाद में देखेंगे. एनीवे, एक बार प्री प्रोसेसर ने अपना काम कर दिया तो एक्शन में आता है कंपाइलर. कंपाइलर दो काम करता है, तुमको दोनों मालूम है, बोलो क्या करता है? चलो बोलो क्या करता है? Error checking and translation. वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम बाय द वे? Aditya. आदित्य. Nikam. हाँ, सो वेरी गुड आदित्य. सो कंपाइलर क्या करता है? वो पहले करता है एरर चेकिंग. अगर एरर नहीं है तो वो कन्वर्ट करता है टू मशीन लैंग्वेज. अब एक बार प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब दिस सेकेंड स्टेज ऑफ कंपाइलिंग इज ओवर. तो यहां तक क्या हुआ ना, 3 सॉफ्टवेयर ने तुम्हारे प्रोग्राम पे वर्क किया. 3, पहला टेक्स्ट एडिटर, दूसरा प्री प्रोसेसर, तीसरा कंपाइलर. अब ये होने के बाद तुम क्या करोगे? यू विल एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम. प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए या तो तुम वो रन पे क्लिक करो या तो फिर तुम कंट्रोल F9 दबाओ, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. अब जब तुम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो 2 सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं. दोनों के बारे में मैंने लास्ट वीक सिखाया था, जिसमें से पहला है लिंकर और दूसरा है लोडर. अभी लिंकर के बारे में ज्यादा हमने सीखा नहीं था. लिंकर के बारे में मैंने तुमको क्या बोला था कि नॉर्मली क्या होता है, जो बड़ा सॉफ्टवेयर होता है ना, कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जैसे व्हाट्सएप हुआ, तो अ सॉफ्टवेयर लाइक व्हाट्सएप विल हैव इंडिविजुअल प्रोग्राम्स इन इट. तो लिंकर क्या करता है? बिफोर एग्जीक्यूशन it will link all the programs into one program and then the loading will start. So linker plays a big role if there are multiple programs in a software. As of now अपना एक सिंगल प्रोग्राम है, तो linker does not play any big role over here. Okay? अब एक बार लिंकिंग हो गया तो उसके बाद आता है लोडर. अब लोडर के बारे में ना मैंने लास्ट वीक एकदम डिटेल में तुमको सिखाया था, एक डायग्राम को दिखाया था. क्या तुमको याद है मैंने तुमको क्या एग्जांपल लेके लोडर के बारे में सिखाया था? बोलो. Yes, sir. हाँ, क्या था एग्जांपल? About the playing of music, any song. वेरी गुड. सो आई विल नॉट रिपीट दैट एवरीथिंग अगेन, बट आई होप तुमको याद होगा. एक मैंने एग्जांपल लिया था कि इफ यू प्ले अ सॉन्ग डायरेक्टली फ्रॉम हार्ड डिस्क तो क्या होगा. ओके, सो बेसिकली लोडर क्या करेगा, ध्यान से सुनो. हाँ, अभी मैंने लास्ट वीक सिखाया था, बट थोड़ा कुछ मैं फिर से तुमको रिपीट करके बताता हूँ. मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो. अभी जैसे मैंने ये प्रोग्राम को स्टोर किया है ना, ये देखो इधर. हाँ, ये देखो ये सी प्रोग्राम से, इसके अंदर मेरा ये फाइल है. हाँ, ये वाला फाइल है. नाउ आंसर अ हॉरिबली सिंपल क्वेश्चन.
ये जो फाइल तुमको दिख रहा है ना, ये करंटली कहाँ स्टोर्ड है? कहाँ स्टोर्ड है मतलब मैं तुमको दो ऑप्शन दूंगा। ये फाइल हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, हार्ड डिस्क में, या रैम में स्टोर्ड है? बोलो ये कहाँ स्टोर्ड है? हार्ड डिस्क। हाँ, तो ये हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है परमानेंटली, ये रैम में स्टोर्ड नहीं है। तुम अगर कंप्यूटर ऑफ करके चले जाओगे तो भी तुमको नेक्स्ट डे फाइल इधर ही मिलेगा, ये हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है। अभी होता क्या है, जब तुम किसी फाइल को एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो, तो क्या होता है, दैट फाइल गेट्स लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। ओके, तो फाइल का बेसिकली एक कॉपी बनता है और वो रैम में लोड हो जाता है। एंड while the file is being executed, while the file is being executed, it is executed from RAM, not from hard disk. तो ये सब मैंने तुमको डिटेल में लास्ट वीक सिखाया था। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एप्स, ऑल सॉफ्टवेयर। अब जैसे तुम्हारे फोन में व्हाट्सएप है, अगर अभी तुम व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हो तो वो हार्ड डिस्क में है। जब तुम व्हाट्सएप को यूज करने लगोगे तो वो हार्ड डिस्क से रैम में आएगा। एंड while you are chatting, the phone will use that copy of WhatsApp जो RAM में present है, and this is applicable everywhere in all the softwares. Okay, so अगर तुम इधर ध्यान दोगे, ये देखो इधर है ना, तुमको कहीं भी RAM दिखाई नहीं देगा। देखो ध्यान से, ये जो तुमको दिख रहा है ना, Windows C, Data D, okay, तो all these things are part of hard disk. अगर तुमने कभी ध्यान दिया होगा ना, तो तुम एक बात रियलाइज करोगे, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना। तुम्हारे कंप्यूटर में ना तुमको रैम दिखाई नहीं देगा। व्हेन आई से दिखाई नहीं देगा, आई मीन इधर दिखाई नहीं देगा। ऑल्दो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर रैम है, बट तुमको दिखाई नहीं देगा। क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट स्टोर एनीथिंग ऑन रैम डायरेक्टली। रैम में स्टोर करने का काम कौन करता है? एक वर्ड में आंसर दो। रैम में स्टोर करने का काम कौन करता है? एक वर्ड में आंसर दो। लोडर। ओके, तो लोडर क्या करता है? हार्ड डिस्क से लेता है, रैम में डालता है। वो काम तुम नहीं कर सकते हो, इसे तुमको इधर रैम कभी दिखाई नहीं देगा। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? फाइनली द पॉइंट ओवर हियर इज कि अगर तुमको कोई सी प्रोग्राम करने का है तो तुमको 3 स्टेजेस लगेगा, टेक्स्ट एडिटिंग, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग। एंड वो जो 3 स्टेज है उसमें 5 सॉफ्टवेयर तुम्हारे प्रोग्राम पे काम करेंगे। 5: टेक्स्ट एडिटर, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर। अभी इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन कभी कभी थ्योरी एग्जाम में आता है या ओरल एग्जाम में तुमको पूछ सकते हैं। ऑल राइट, नाउ आई वांट वन ऑफ यू टू रीड दिस। सो रितु पावस्कर, इसको एक क्वेश्चन को रीड करो, कम ऑन। Order the following stages of program development. और उसके नीचे क्वेश्चन में ये दिया है, द क्वेश्चन इज नॉट yet over. Now these stages are also given in the question, but they are not in order. अब तुमको क्या करना है, ये सब स्टेजेस को ना ऑर्डर में डालना है। ऑलराइट, चलो अभी दर्श मेरे को बोलो इधर पहला स्टेज क्या आएगा? पहला स्टेज, खाली पहला स्टेज बताओ। दर्श पहला स्टेज बताओ। स्वरा पहला स्टेज बताओ। पहला स्टेज ये बोल रहे हैं ऑर्डर, या ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो जो पहला स्टेज है वो होगा एडिटिंग। सबसे पहले तुम प्रोग्राम का एडिटिंग करो। ऑलराइट, देन शामिला अंसारी, टेल मी सेकंड स्टेज क्या होगा? सेकंड स्टेज बोलो। कंपाइलिंग। सेकंड स्टेज कंपाइलिंग एक्चुअली नहीं होगा, प्री प्रोसेसिंग मींस। हाँ, प्री प्रोसेस। ऑलराइट, ओके, तो सेकंड प्री प्रोसेस होगा। वैभव थर्ड स्टेज बोलो। थर्ड स्टेज श्रेयस बोलो। थर्ड स्टेज श्रेयस अनुते। काशिफ थर्ड स्टेज बोलो। लिंकिंग। थर्ड स्टेज होगा कंपाइलिंग। प्री प्रोसेसिंग के बाद आएगा कंपाइलिंग। ऑलराइट, अब एक बार ये हो गया। अस्मी नेक्स्ट स्टेज बोलो। फोर्थ स्टेज लिंकिंग। हाँ, the next stage, fourth stage is linking, and finally the last is executing, जिसको हम loading भी बोल सकते हैं। All right, so ये executing इधर लिखा है, but it actually means loading. So these are the stages in order. Any doubts here? Any doubts? No sir. ठीक है, तो अभी सबसे पहले कॉपी द स्क्रीन, यहाँ से लेके, आई थिंक तुमने हेडिंग तो कॉपी किया है, कॉपी द रेड कलर।
हेडिंग अगर कॉपी कर लिया है तो उसके नीचे रेड कलर कॉपी करो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। या टेल मी। सर प्री प्रोसेसिंग में कौन सा भी हेडर फाइल सब्स्टिट्यूट होता है ना? मतलब हाँ, जो तुम लिखोगे, अगर समझो तुमने लिखा हैश इंक्लूड, एक हेडर फाइल है जिसका नाम है मैथ, MATH मैथ, तो तुमने अगर ऐसा लिखा हैश इंक्लूड math.h, तो math.h का कंटेंट उधर सब्स्टिट्यूट होगा। जो मतलब कोनियो भी होगा ना? हाँ, कोनियो भी होगा। अगर तुमने कोनियो लिखा है तो कोनियो भी होगा। बेसिकली जो भी तुमने हैश इंक्लूड में लिखा है ना, वो सब सब्स्टिट्यूट होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। Tomorrow again we'll have the lecture. Same tomorrow, around 6:45 PM I'll start. After today's lecture, either you have your dinner first or maybe before you have your dinner, तुमको कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करना है और एक प्रोग्राम रन करना है, ठीक है? बट वो आज ही करना है, बिफोर और आफ्टर योर डिनर, व्हाटएवर। ऑलराइट, कॉपी अगर नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो। Sir, the return program. क्या? The return program. एनी प्रोग्राम, बस तुमको कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करके कोई भी एक प्रोग्राम करना है, एक लाइन उसमें लिखना है, देखना है कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। कोई भी प्रोग्राम। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। जब स्क्रीनशॉट लेते हो तो उधर जगह छोड़ो नोटबुक में, ताकि वो बाद में लिख सको। और जो भी स्क्रीनशॉट्स लिया है लेक्चर के इमीडिएटली बाद उसको फिल करो, क्योंकि क्या होगा ना, ऐसा उसको पेंडिंग रखोगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेम्बर कि उधर क्या क्या लिखना है। ऑलराइट, कॉपी दिस नाउ। ये क्वेश्चन है, जो ब्लैक कलर है, क्वेश्चन है, और ये उसका आंसर। एक काम करो, पहले क्वेश्चन लिखो। अब इसके नीचे लिखो, द फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन ऑर्डर। द फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन ऑर्डर। Now copy these stages. So can you again repeat the line following other stages? In order. In Okay. order. All right, so that's it for today's lecture. After a day or two, I will put an important message on our WhatsApp group. तो उसको please ध्यान से सुनना और समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ. Okay. So as of now, this lecture is over. We'll again continue tomorrow with a very important topic called algorithm and flowchart. Okay. Any doubts? No doubts, sir. सर So Yeah, बोलो. सर वो कोड लिखा था ना, उसमें मुझे वॉइड मेन क्या है वो नहीं समझा। वो void main है ना, इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। उसका जो डिटेल्स है वो बाद में देखेंगे। अभी आज हमने कोई भी डिटेल्स नहीं किया है। डिटेल्स हम हर एक चैप्टर में करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रिंटफ क्या है, उसका डिटेल हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो हर एक चीज का जो डिटेल है वो हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में करेंगे। आज के लिए इंट्रोडक्शन।
ओके सर, Okay. थैंक यू। Sir, I haven't received the notes of any subjects yet. Because I think you must have joined the WhatsApp group late, मुझे ऐसा लगता है। तो anyway, मेरा जो सब्जेक्ट का नोट्स है वो मैं आज या कल में WhatsApp ग्रुप पे डाल दूंगा। ऑलराइट, और बाकी का है वो जो भी है वो तुम रिस्पेक्टिव टीचर्स को पूछ लो। Okay, sir. ऑलराइट।